Assalamu alaikum, dear children. I hope each and everyone is fine and is safe. Children, as all of you are aware, we are studying the island part of India, and in the previous lecture, we talked about the Andaman and Nicobar Islands. In the previous lecture, we talked that the Andaman and Nicobar Islands total comprises of 500 islands and it covers an area of about 8,000 square kilometers. एंड हमने ये पढ़ा था कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं. सो टुडे वी शिल स्टडी द अनदर इम्पोर्टेंट आइलैंड इन इंडिया जो अरेबियन सी पार्ट में है विच इज़ कॉल्ड द लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो चिल्ड्रन, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बोला है, आई टोल्ड यू अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई शुड रिपीट इट हेयर वंस अगेन दैट इंडियन ओशन दैट सराउंड्स द साउथ पार्ट ऑफ India is divided into two important parts, the Bay of Bengal and the Arabian Sea. The Bay of Bengal, as you can see in this picture, comes in the eastern डायरेक्शन ऑफ इंडिया, वाइल एज जो अरेबियन सी है जो आज हम लक्षद्वीप आइलैंड जहाँ पे प्रेजेंट है दैट फॉल्स ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया. Now children, today in this lecture we shall try to gather all the important information about the Lakshadweep Islands. So first of all हमने क्या पढ़ा कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो किस में प्रेजेंट है, जो अरेबियन सी है, which means कि in this map you can see कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है वो इंडिया के वेस्ट पार्ट में आता है. And also you have to remember that Lakshadweep is the smallest union territory of India, and in the previous lecture when we talked about the Andaman and Nicobar Islands, there I tried to explain you that what do we mean by a union territory. So here I should repeat it once again. So union territory is that part of the country. अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो यूनियन टेरिटरी वो पार्ट है इंडिया का which comes directly under the control of the central government, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है अपने किसी एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं या ऑफिशियल को अपॉइंट करते हैं जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट अ स्टेट में क्या होता है, द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है. बट द लक्षद्वीप आइलैंड जो है इट इज़ द यूनियन टेरिटरी एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया because it consists of over 30 islands covering an area of about 32 square kilometers only. So इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में टोटल सिर्फ 30 आइलैंड्स है एंड जो टोटल एरिया है लक्षद्वीप आइलैंड्स का चिल्ड्रन दैट इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. बट इफ़ वी कंपेयर द लक्षद्वीप आइलैंड्स विद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो हमने पढ़ा था कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पे टोटल में 500 आइलैंड्स है एंड the Andaman and Nicobar Island cover an area of 8,000 square kilometer. And also children, you need to remember कि जो हमने पढ़ा था कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो टोटल 500 आइलैंड्स है they have been divided into two groups. The Andaman part consists of 300 islands while as the Nicobar Island consists of 200 islands. So यहाँ पे जो आप ये मैप देख रहे हैं the map of Lakshadweep, you have to remember that कि the most important point about the Lakshadweep Islands is that it is the smallest union territory because it only comprises of 30 islands and it covers an area of 32 square kilometers. लेकिन अगर आपको याद होगा हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है इट कवर्स एन एरिया ऑफ 8,000 स्क्वायर किलोमीटर. सो एरिया के हिसाब से अगर हम कंपेयर करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज वास्ट एज कम्पेयर to the Lakshadweep Islands. Another important thing here, you can see that the capital of Lakshadweep, dear children, is Kavarati. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला, we should repeat it once again that the capital of the Andaman and Nicobar Island, children, is Port Blair. Similarly, the capital of Lakshadweep Islands, जो अब किस सी में आता है, अरबियन सी में आता है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आता है, the capital of Lakshadweep Island, which is also the smallest union territory of the country, is Kavarati. Now children, जो टोटल में लक्षद्वीप आइलैंड्स में 30 आइलैंड्स है, all the 30 islands are not inhabited. सिर्फ कोई आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं. And another important and interesting fact to learn about the Lakshadweep Island, children, is that here you can see that in this map that जो कोचिन है, कोचिन के काफ़ी नज़दीक पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड्स.
हियर यू कैन सी कि जो कोचिन है, जो बिल्कुल आप केरला के पास में देख सकते हैं, वहाँ पे जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स आप लोगों को काफ़ी नज़दीक में दिखेगा. एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल कि जब हम लोगों ने कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ा था, especially when we studied the western coastal plains, we talked that, and we learned there that the entire western coastal plain is divided into three important parts: the Gujarat coast, the Konkan coast, and the Malabar coast. एंड हमने डिफरेंट पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था. एंड जब हमने मलाबार कोस्ट के बारे में पढ़ा था, वी स्टडी दैट देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट पोर्ट कोचिन. सो हियर यू कैन सी कि जो कोचिन है, कोचिन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स पड़ता है. हियर यू कैन सी कि कोचिन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है. सो बेसिकली जो मलाबार कोस्ट है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आता है, बिकॉज क्योंकि जो अरेबियन सी है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही आता है. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जो कोचिन है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द मलाबार कोस्ट. तो जो कोचिन है दैट वो नज़दीक है लक्षद्वीप आइलैंड के. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू. एंड वी हैव टू रिमेंबर कि अगर हम एरिया के हिसाब से देखें, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है दे आर वास्ट इन एरिया एज कम्पेयर टू द लक्षद्वीप आइलैंड्स, बिकॉज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कवर्ड एन एरिया ऑफ अबाउट 8,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, वाइल एज जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उनका एरिया जो है सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट चिल्ड्रन, जो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, वी सी दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, 500 islands, and we have divided it into two important groups. There is a specific term used to describe a group of islands, and that is an archipelago. Archipelago basically क्या होता है, जब भी हम लोगों को group of islands के बारे में बात करनी होती है, so archipelago refers to a group of islands. And in India, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोटल में वहाँ पे 500 आइलैंड्स है, एंड अंडमान में 300 islands है, while as Nicobar consists of 200 islands. So because it is a group of islands, the Andaman and Nicobar islands are called as an archipelago. They are called an archipelago because they consist of group of islands. I hope this much is clear to you. Moving ahead. Now children, if you are able to recall, I also told you that the Andaman and Nicobar Islands are basically formed by the mountains which are submerged in water, and उनका जो top portion है जो वाटर से बाहर निकला हुआ है, एंड विच इज़ कवर्ड विद वाटर ऑन ऑल द 4 साइड्स. तो बेसिकली जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो क्या है, जो माउंटेन्स समंदर में डूबे हुए हैं उनका जो टॉप पोर्शन है वो ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फॉर्म करते हैं. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स. नाउ व्हाट आर कोरल्स? नाउ चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव वॉच्ड एनी प्रोग्राम ऑन डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक चैनल, आपने वहाँ पे देखा होगा लॉट ऑफ पीपल डाइव डीप इनटू द सी, स्कूबा डाइविंग जिसको हम बताते हैं. एंड ऑन द इन द वहाँ पे सी के नीचे आप कुछ जो सबस्टेंस है या ऑब्जेक्ट जो आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, आपको ऐसा दिखता है वहाँ पे जो बिल्कुल ओशन के या सी के बॉटम में होता है, इनको बोला जाता है कोरल रीफ्स. ना कोरल रीफ्स जो है, जो ये ऑब्जेक्ट्स है, जो ये सबस्टेंसेस है, बेसिकली कोरल्स आर अ सबस्टेंस दैट आर आइदर रेड, पिंक और वाइट इन कलर, and that form on the bottom of the sea from the bones of very small sea creatures. तो जो ये coral reefs है, ये कैसे बनते हैं कि जो वाटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फिश होते हैं या कुछ इनवर्टेब्रेट्स होते हैं, आफ्टर देयर डेथ जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है एंड जो स्केल्टन रिमेन जो स्केल्टन वहाँ बच जाता है, तो उन्हीं से ये कोरल रीफ बनते हैं. एंड एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर एज वेल दैट दे आर येलो इन कलर, आपको ग्रीन कलर का भी कुछ पार्ट दिखेगा, ऑरेंज, वाइट, सो दे काइंड ऑफ लुक ब्यूटिफुल. एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ दीज कोरल रीफ्स ओनली. सो अनदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स क्या है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो बने हैं और दे आर फॉर्म्ड बाय द टॉप पोर्शन ऑफ द माउंटेन्स दैट आर सबमर्ज्ड इन वाटर, वाइल एज जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है दे आर
formed because of the coral reefs. अब coral reefs अगर हमसे कोई पूछेगा कि coral reef क्या होते हैं या ये कैसे बनते हैं, so basically जो भी living organisms होते हैं जो water bodies में होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो जब उनका decomposition होता है, उनका जो skeleton रह जाता है, उन्हीं से जो ये coral reefs बनते हैं. And the Lakshadweep Island children क्या है, they are made up of these coral reefs. नाउ ऑल्सो अगर आप देखेंगे जब हमने पिछले लेक्चर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ा था, तो वी टॉक्ड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. वहाँ पे हमने पढ़ा दैट द क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट. सो सेम काइंड ऑफ द क्लाइमेट जो है हमें लक्षद्वीप आइलैंड में भी मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है, वार्म है बट प्लेजेंट है, बिकॉज अ कूल सी ब्रीज, सी से जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएँ आती हैं एंड पीपल गेट रिलीफ फ्रॉम दैट स्कॉचिंग हीट. जो काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है उससे इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है. एंड अगेन बिकॉज ये एक आइलैंड है, लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंड अपॉन फिशरीज एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द लक्षद्वीप आइलैंड चिल्ड्रन आर राइस, कोकोनट एंड बनानास एंड कुछ वेजिटेबल्स भी वहाँ उगाए जाते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट द लक्षद्वीप आइलैंड. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द आइलैंड्स ओवरऑल, अगर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल इंडिया में आइलैंड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, चिल्ड्रन इट इज़ बिकॉज दैट की जो ये आइलैंड्स है, चाहे हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें और इफ़ वी टॉक अबाउट लक्षद्वीप, दे हैव बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. अ ह्यूमंगस नंबर ऑफ पीपल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, चाहे इंडिया से या फॉरेन से, दे विजिट दीज प्लेसेस थ्रू आउट द ईयर बिकॉज वी ऑल लव वाटर. अगर हम कश्मीर में भी बात करेंगे, जब समर्स होते हैं, हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल पहलगाम, कुकरनाग या वेरीनाग चले जाते हैं, डल लेक स्पेशली, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, बिकॉज वी ट्राई टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट हीट ऑफ द सन. सो दे हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस. एंड मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी कोई जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनती है, इट जनरेट्स अ लॉट ऑफ रेवेन्यू. गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स दिस मनी ऑन इट्स सिटीजन्स, बिल्डिंग ऑफ हॉस्पिटल, स्ट्रीट्स एक्सेट्रा. काफ़ी ज़्यादा पब्लिक वर्क होता है. एंड ऑल्सो जो ये आइलैंड पार्ट है, फिशरी इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है इंडिया की. अब चाहे हम अंडमान की बात करें और लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ सराउंडेड विद वाटर ऑन ऑल द फोर साइड्स एंड पीपल डिपेंड ऑन फिशरीज फॉर लाइवलीहुड. दे कैच अ लॉट ऑफ सी फूड. एंड ऑल्सो जब इंडिया में क्या होता है कि फिशरीज जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है एंड अ लॉट ऑफ फिश आर एक्सपोर्टेड. अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू 75 डिफरेंट कंट्रीज. एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दीज आइलैंड ग्रुप. चाहे आप अंडमान या निकोबार की बात करें या लक्षद्वीप आइलैंड की बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंस ये है कि सबसे पहले ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन चुके हैं एंड एज सच अ लॉट ऑफ मनी कम्स टू द गवर्नमेंट. एंड इससे लोगों का जो रहने का तरीका जो है वो इम्प्रूव हो जाता है. द क्वालिटी ऑफ द लाइफ बिकम्स बेटर. एंड ऑल्सो इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ नेम इन द फिशिंग इंडस्ट्री. अ लॉट ऑफ फिश इज एक्सपोर्टेड, और नॉट ओनली fish, a lot of seafood. If you talk about shrimps, crabs, a lot of seafood is exported from India to different parts of the world. And India has become one of the prominent exporters of seafood in the world. So dear children, this was all about Lakshadweep Islands and why the islands are important in India. I hope, dear children, this much is clear to each and everybody of you. Inshallah, I shall see you in the next lecture. Till then, have a great day. Take care.